Hello, everyone. Good evening. I hope you all are having a wonderful and a fantastic day. I'm so happy to see you all here. Yes. Okay. Yeah. I hope. Yeah. Okay. So today we have a very exciting conversation lined up, and we are, delving deep into the topic how manifestation actually works. And I'm so happy to welcome Priyanka Gupta, one of my friend as well, and she has been manifesting a lot, and she is means particularly very successful in manifesting many things. So let's dig deeper and know from her how she is doing all the things. So very welcome to all of you and to Priyanka as well. Yes, Priyanka. Thank you, Manjusha. Thank you so much. Yeah. So along with that, I just also wanted to welcome Dipankar and some I don't know, I think some Divangan and Amit Kumar. So thankful that you all joined. Manifestation is one of the topic which everyone should know, I believe, and we are going to discuss on this. And before we start, I just wanted to know from the audience: have you ever manifested anything in your life? If yes, how did it work? Please tell me in the comment box that have you ever manifested anything in your life? If yes, how did it work? And if no, then what stopped you? Because manifestation is something really people should know about. Okay, so let's start our conversation, Priyanka. Yeah, sure. Yeah. So Priyanka, I wanted to know from you, from the beginner's point of view, if कोई जो है वो बहुत नया है मैनिफेस्टेशन में, if he or she doesn't really know anything about manifestation, so just from that perspective, tell us what is manifestation, what exactly is manifestation, and just whatever you want to explain about this. Yes. Must say manifestation is just a process जो हमारी थॉट्स, बिलीफ, हमारी विशेष को पूरा करने का एक जरिया है ये, जिसके द्वारा हम अपनी जो भी डिजायर्स है लाइफ में उसको फुलफिल कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं, वी वर्क सो हार्ड ऑन दोज थिंग्स, वी थॉट्स अ लॉट. तो उसको फुलफिल करने के लिए अगर हम सारे एक्शंस लेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, उस तरीके से सोचेंगे हम, तो डेफिनेटली वो रिजल्ट हमको मिलेगा. सो वी हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस, देन वी कैन अचीव दोज थिंग्स. जस्ट बी अलाइन विद द माइंडसेट कि हमको पॉजिटिव रहना है, उसके बारे में पॉजिटिव सोचना है, और हमको ट्रस्ट करना है कि हाँ, डेफिनेटली वी विल सक्सेस इन दोज थिंग्स which we are doing right now. Perfect. Meanwhile, I just wanted to welcome Pallavi ji, Amit Kumar ji, and Dr. Pragya as well. And she wrote a beautiful message here. Happy to see you both during the beautiful job. Thank you so much, Pragya. Thank you all for taking out your time on the Yeah. Friday evening and joining us. Okay, so very well explained by Priyanka what is manifestation. I just wanted to add on few things here. Ki I feel like, when we say, I wish this happens, I hope this happens, in that case, we are in state of lack, जहां पे हमें कुछ चीज चाहिए होती है, राइट? लेकिन जब हम वो मैनिफेस्ट करते हैं, इट मीन्स वी आर डिक्लेयरिंग टू द यूनिवर्स दैट वी वांट इट, right? We are basically preparing our mind, our body, and our spirit to what we actually desire. So this is what I feel like what manifestation is, what apart from what Priyanka said, Yeah. basically training our mind, body, and spirit to the dream or desire you have, basically. So it's not that you are giving power to someone else by saying that okay, I hope, I wish this happens. क्योंकि जब हम ये बोलते हैं ना कि Yeah. I wish this happens, तो मोस्टली क्या होता है कि कोई कर दे यार, Correct. राइट?
Isn't it प्रियंका? कोई कर दे, करेक्ट लेकिन जब हम मैनिफेस्ट करते हैं तो इट्स लाइक एवरीथिंग, ऑल द पावर इज विद इन अस, विद इन। हमको ही करना है, करेक्ट राइट? वी आर द ओनली वन responsible for our dream, desire, and everything we need to do. And manifestation is nothing but preparing our mind, body, and spirit to take the action, right? So Priyanka, just tell us, what is the science behind manifestation? Is it just the word we are saying, or exactly is there any science behind it? Please explain, Priyanka. Actually, there is a science behind it. Manifestation is a thing to prepare our subconscious mind. We have two type of mind. One is subconscious mind and one is conscious mind. Conscious mind हमारे 24 hours काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो जब हम सोते हैं उस टाइम पे वो काम करता है, जो कि हमको पता नहीं होता है। वो हमारी डीप इन द माइंड बहुत सारी चीजें हमारी ऐसी रहती है जो कि हम सोच रहे हैं पर हमको पता नहीं होता एक्चुअल में हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर कार चला रहे हैं तो हम शुरू में जब कार चलाना सीखते हैं तो हम पहले तो क्लच दबा रहे हैं, ब्रेक दबा रहे हैं, हाथ दबा रहे हैं, कभी कुछ गाड़ी सामने आई तो हम डर जाएंगे, हमारा ध्यान इस पे चला जाएगा, इस तरीके से होता है। बट अगर हम धीरे धीरे चलाना सीख जाते हैं, हमारी प्रैक्टिस हो जाती है, तब हम किसी से बात भी कर रहे हैं आराम से, कोई गाड़ी आ रही है तो बहुत ही स्मूथली हम गाड़ी चला रहे हैं उस टाइम में। रीजन, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसके लिए हमारी पूरी बॉडी को प्रिपेयर कर चुका है कि हम जो चीज प्रैक्टिस हो चुकी है तो हम उसको ऑलरेडी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो इन दिस वे एक्चुअली सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। तो इसी तरह मैनिफेस्ट करते हैं तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जिससे कि हम बहुत अच्छे से उस चीजों को, वो एक एनर्जी है यूनिवर्स में, हम भी एक एनर्जी है इस दुनिया में। एक्चुअली दुनिया में हर चीज, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, हर चीज एनर्जी है। सो अगर हम किसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं बाय एनर्जी, बाय थॉट्स, तो वो हम एनर्जी, एक फ्रीक्वेंसी होती है हर एक एनर्जी की, हम जो चीज चाहते हैं तो हम उस फ्रीक्वेंसी से उसको मैच करते हैं, हम अट्रैक्ट करते हैं उन चीजों को। सो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट एक्चुअली। Yeah, very well said, Priyanka. It's really the science behind manifestation. It's not just the word, it's exact the science which everyone should know how manifestation works. FTBAs, that is feeling, thoughts, belief, and action, करेक्ट has to be aligned, right? अब हम, if only we are feeling कि okay, I'm rich, okay, or okay, I have got my, I mean, you know, everything should be aligned, your action should be aligned, your feeling should be aligned, you, आपको सोच भी वैसी रखनी है। ये चारों चीजें जब अलाइन होती है तभी आपकी मैनिफेस्टेशन जो होती है, इट मीन्स ड्रीम्स टर्निंग इनटू रियलिटी। सो इट्स ऑल स्टेप बाय स्टेप। एंड यस प्रियंका, द थिंग विच यू टोल्ड अबाउट एनर्जी, यस, सभी चीजें यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी, सब में एक एनर्जी है, राइट? जब हम उस एनर्जी पे वाइब्रेट करते हैं, उस बेसिकली जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, जो भी हमारे डिजायर्स हैं, वेदर इट्स मनी और रिलेशनशिप, हेल्थ और वॉट एवर, दैट ऑल इज हैविंग एनर्जी। जब हमारी एनर्जी मैचेस टू दैट एनर्जी, then we naturally attract that. This process is beautiful, and everyone, I really feel that everyone should know. This is basically a science, really. तो प्रियंका, आपने कहा जैसे कि अपने हर चीज में पॉजिटिव रहना चाहिए, तो क्या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स मोर देन इनफ है? नो, नॉट एट ऑल। हम पॉजिटिव रहते हैं तो इसके साथ साथ एक्चुअल में हमको पॉजिटिव रहने के साथ इमोशनली हमको उस चीज से कनेक्ट होना होगा। हम जो भी सोच रहे हैं तो हमको इमोशनली बिलीव करना कि हाँ डेफिनेटली ये चीज होगी, हमको उस चीज पे डाउट नहीं रखना है। इस प्रोसेस पे अगर डाउट करेंगे तो ये काम नहीं करेगा हमको, क्योंकि वो एनर्जी लेवल मैच करना है, वो फ्रीक्वेंसी मैच करना है, जैसे मैंने कहा। तो उसके लिए हमारी जो इमोशंस होती है, हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है, उसको भी मैच करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमको साथ ही साथ जो हम एक्शन ले रहे हैं उसके लिए भी हमको प्रॉपर एक्शन लेना होगा। ये नहीं खाली हम सोच रहे कि हाँ ये चीजें हो जाएंगी, तो मतलब भगवान ये नहीं बोलते कि हाँ बस तुम सोचो और मैं ला के दे दूंगा। यू हैव टू वर्क ऑन इट। तो उस तरीके से हम उसको वर्क भी कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी भी बहुत जरूरी है। एक्शन करने के साथ हम कंसिस्टेंट रहेंगे तो हमको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स बिहाइंड इट।
Yeah, meanwhile, I just wanted to welcome Chaco and Tanveer, Abhishek ji, 3MM, this is what is written, and Himalaya ji. Thank you so much all for joining us in this session, and it really means a lot because Friday की evening है सब अपने एक relaxing zone में होते हैं, आप लोग आए और हमारा live session में attend कर रहे हैं, that really means a lot to us. So we were discussing about कि क्या सिर्फ पॉजिटिव रहने से या पॉजिटिव सोचने से मैनिफेस्टेशन वर्क करेगी, एंड प्रियंका हैज वेल आंसर्ड दैट कि अपने सारे एक्शन भी अलाइन होने चाहिए, अपने को उतना ही कंसिस्टेंट भी रहना है. एंड वन थिंग आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन हियर कि पॉजिटिव सोचना एंड एक्शन लेते रहना, कंसिस्टेंट रहना, this all is a part of manifestation only, right? Training our mind to be in that zone of positivity. लेकिन हम ये इतनी सारी चीजें हमारे साथ होती रहती है कि आप बहुत जल्दी डिस्करेज हो जाते हैं या कुछ भी, मतलब इतने सारे सर्कमस्टेंसेस रहते हैं कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं. मतलब उस एनर्जी को मेंटेन करना इट्स रियली वेरी टफ कि दैट हाई एनर्जी आई कैन से उसको मेंटेन करना बहुत टफ होता है. सो हियर आई जस्ट वांट टू से टू मेंटेन दैट पॉजिटिविटी, few things that keeps our energy absolutely high is meditation and correct. Yoga, physical exercise, anything like in which you feel pumped up, जहाँ पे आपको लगे कि yes it's you are feeling absolutely energetic, that raises your vibration. And when you raise your vibration, you match that vibration and you naturally attract the thing which you really want and which you really desire, right? So apart from positive thinking, inculcating few things in your daily life really helps to manifest the thing which you really want, right Priyanka? Yeah, absolutely correct. Yeah. अच्छा, Priyanka, just wanted to know ये law of attraction, how it is related to manifestation. एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ प्रिंसिपल, ये एक सिद्धांत है जिसके बेसिस पे हम मैनिफेस्टेशन करते हैं. लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उस पे हम जो रहता है कि हम जो पॉजिटिव सोच रहे हैं अगर, तो हमको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. इट्स जस्ट लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल काम करता है. बट हम इस चीज को हमको करने के लिए हमको मैनिफेस्टेशन करना होगा. तो मैनिफेस्टेशन करने के लिए हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया. हम उसको पॉजिटिव में रहना होगा, इमोशनली हमको पॉजिटिव रहना होगा, हमको काम अपना करना होगा. इसके साथ साथ हमको ग्रेटिट्यूड में रहना होगा. ग्रेटिट्यूड मीन्स हमको ग्रेटफुल में रहना होगा. साथ ही हमको उस पर बहुत सारी जैसे चीजें हमको विजुअलाइजेशन करना होगा कि हम पॉजिटिव रहना चाहते हैं. तो इन सारी चीजों को हम पूरे प्रोसेस में लेके आते हैं. माइंडसेट का एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, बहुत सारी चीजों का लेयर्ड अप में. इफ यू विल डू ऑल दोज थिंग्स रेगुलरली, देन आप उस माइंडसेट में जाएंगे, देन यू कैन डू द थिंग्स व्हाट यू वांट इन द लाइफ. सो ये प्रोसेस होता है इसका. ओके, या वेरी वेल सेड प्रियंका. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सिंपल टर्म्स में आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्लेन और जस्ट से हियर, like attracts like. Whatever you send in the universe, whatever you give out, it multiplies and comes back to you. अब now we need to decide and we need to analyze कि हम universe में क्या भेज रहे हैं. Whether it's positive, if we are sending positive, if we are really in that feeling of joy, passion, enthusiasm, that is what we are radiating, then it will come back to us. But अगर हमारे मन में या थॉट्स में फियर है, जेलेसी है, एनवी है, all these things, automatically it will come back to us. So it's very simple term, like attracts like. Whatever you send out will come back to you, right? Is it fine, Priyanka? Yeah, yes, absolutely correct. yes. तो प्रियंका थोड़ा सा बताओ कि क्या क्या चीज अट्रैक्ट करी है, क्या क्या चीज मैनिफेस्ट किया था, एंड व्हाट डिड यू गेट इट? सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा जो फर्स्ट टाइम, मैं बहुत टाइम से ही चाहती थी कि क्योंकि मेरी लाइफ में जो जर्नी रही है उसमें जो ब्रेकडाउन था उसमें मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होके मैंने जो उस ब्रेकडाउन से जीत हासिल की थी, मैंने बोलना चाहिए. तो उसके लिए
मैं पॉजिटिव माइंडसेट में थी। सो आई मैनिफेस्ट एक्चुअली कि मैं हमेशा ना लोगों को ये चीज़ बता सकूं कि कैसे आप जब भी आपके टफ पीरियड होते हैं उस टाइम पे आप अगर पॉजिटिव रहें। जैसे कि फॉर वंस डॉक्टर ने मुझे कहा था कि यू कांट, आप जिस स्टेज पे हो अभी ऐसी रहोगे आप ठीक नहीं हो सकते हो। सो आई वॉज लाइक एट दैट टाइम, मुझे ये मन में ख्याल नहीं आया कि डॉक्टर मुझे ये बोलेंगे कि अरे यार तुम ठीक नहीं हो सकती। मैं दुखी नहीं हूँ उस टाइम में। आई वॉज लाइक आप ये सब बोल कैसे सकते हैं, मैं ठीक होके दिखाऊंगी, एक दिन आपको बोलूंगी देखो मैं ठीक हो गई एंड आई एम 100% फाइन नाउ। सो दिस इज माइंड सेट पॉजिटिव विच आई से एंड आई मैनिफेस्ट कि ये चीज मैं लोगों को बताऊं कि इस तरीके से लोग हो सकते हैं अपनी लाइफ में जो भी डिजायर हो, चाहे कितनी भी लेवल की आप डिजायर हो, कितने भी बीमार हो, कितनी भी मनी की रिक्वायरमेंट हो, अगर उनकी डायरेक्शन सही जा रहे हैं, पॉजिटिव माइंड सेट में है तो उनकी विश जरूर पूरी होगी। Really, hats off to you, Priyanka. Means like really, I know how difficult was the scenario at that time, and the way you did it was absolutely fantastic. Seriously. And coming to my point of view, to be very honest, Priyanka, कि अगर I think 2 years back मेरे से कोई पूछता कि manifestation क्या है, do you know anything about it? I would have said I really don't have any idea. But when I started to read, when I did different courses on this manifestation, I came to conclusion कि आज एक point पे हर किसी को पता होना चाहिए मैनिफेस्टेशन क्या है, right? It is so easy to live your life, whether it's financial abundance, whether it's your health, whether it's your relationship, whatever you are going to live a absolutely wonderful life. And when I read that and when I started practicing that, I cannot tell what all opportunities I'm getting and what all means, universe जब देने पे आ जाए ना तो आप means जब जो बोलते हैं ना बट जो आपके पात्र है, जो जिस पात्र में आप लेने आए तो चम्मच लेके मत चलो, इट्स लाइक पूरा का पूरा बड़ा सा चीज लेके चलो, इट्स गोइंग टू गिव यू इन अबंडेंस। सीरियसली, मतलब आई कैन नॉट I cannot really explain इतनी सारी opportunities, every day is filled with like passion, and हर दिन कुछ opportunities होती है कि मतलब and that is what we have learned out of this. अब इस stage पे लगता है we should share and inspire everyone to be in this process. Even this those small things, हम बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देते। अगर हम छोटी चीजों के लिए भी ग्रेटफुल होना तो हमारे पास वो चीजें इतने अच्छे से आती है। इट्स लाइक यूनिवर्स हमको इतना कुछ देते हैं, we can't even imagine. So we always should be in that manifestation zone actually. कहीं ना कहीं बस पॉजिटिव है, लोगों के लिए पॉजिटिव सोचे और यही सब जगह लोगों को बताते हैं। डेफिनेटली ये आई विश की पूरी ये अर्थ इस तरीके से अगर मैनिफेस्टेशन से भर जाए तो ये दुनिया में सारे कितने अच्छे लोग हो जाएंगे। Seriously. Okay, meanwhile, I just wanted to welcome Creative Head Jalaj Kaushik ji, Empower Mindset, and some sports teacher as well, I Patel ji, Social by Lily. Thank you so much for joining us. We actually wanted this session to be quite interactive. In case if you have any question related to this, please do send us in the comment box and we would love to answer this. So it's a request from my end. किसी को भी कोई भी doubt या anything you want to know about manifestation, we are here to answer you. Let's continue the conversation. Priyanka, tell me कि अभी जैसे आपने बोला कि सब जो चाहते हो मिल जाएगा तो यूनिवर्स कितनी अच्छी हो जाएगी या अपना वर्ल्ड कितना अच्छा हो जाएगा, बट टेल मी इट्स लाइक कोई कुछ भी चाहे तो मैनिफेस्ट कर लेगा क्या? इज इट लाइक दैट? कैन एनीवन मैनिफेस्ट एनीथिंग? Yes, but there is a limitation कि आपको नीड फुलफिल करनी है, आपको ग्रीडी नहीं बन रहा है। यूनिवर्स नो द डिफरेंस बिटवीन दैट। आपकी नीड है, आपकी विश है, देन डेफिनेटली इट विल फुलफिल, बट आपकी ग्रीड है कहीं ना कहीं तो वो फुलफिल नहीं होगी। क्योंकि यूनिवर्स नो द एनर्जी लेवल। आप कहीं ना कहीं ग्रीडी होते हैं तो हमारे एनर्जी में वो नेगेटिविटी भी आती है साथ में। So we have to be very careful what we are actually asking the universe what we want. तो हमको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्लैरिटी रखनी होगी हम क्या चाहते हैं। हमको क्लैरिटी रखनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कार चाहते हैं, मैं एक कार खरीदना चाहती हूँ तो आई हैव टू बी क्लियर कि मुझे कौन सी कंपनी की कार लेनी है, कार का मॉडल क्या होना चाहिए, कार का कलर कौन सा होना चाहिए, कार की प्राइस क्या है, उसके लिए मेरे पास मनी जो है वो मैं है कि नहीं है, या
उसके लिए आप नहीं भी सोचे, दैट इज सेकंड पॉइंट, बट यू हैव टू थिंक कि आपके घर में जगह है कि नहीं है। इन सारी चीजों को अगर आप क्लैरिटी से पूरी चीजों को आप डिफाइन करेंगे तो आप यूनिवर्स से बहुत इजीली आस्क कर सकते हो और मांग सकते हो उन चीजों को, तो वो इतने क्लियर होंगे। क्योंकि हम किसी से भी कुछ पूछे, हम एक बच्चे से पूछते हैं आपको क्या चाहिए, कौन सी चॉकलेट चाहिए, तो उंगली दिखाएगा, तभी तो हम उस बच्चे को वो चॉकलेट दे सकते हैं। द सेम थिंग विद द यूनिवर्स एज वेल। हम जो एग्जैक्टली जो चीज बताएंगे यूनिवर्स हमको वही चीज देंगे। सो वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। हम जो चीज मांग रहे हैं उस पर जस्ट ट्रस्ट करें और मांग के हम बोले कि हाँ वी गेट इट। दैट्स रियली ट्रू। इस पे जैसे प्रियंका ने बोला कि नीड एंड ग्रीड, यूनिवर्स अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंस बिटवीन नीड एंड द ग्रीड। यस, और इट्स लाइक हियर जस्ट वन पॉइंट आई वांट टू ऐड ऑन, आपको वो चीज क्यों चाहिए, द वाई बिहाइंड एवरीथिंग। अगर आप सी व्हाट हैपेंस, there is a stage like if you are just as of now if you are having cycle, you cannot directly manifest BMW, right? Because that's really not possible. Everything happens step by step. Yeah. And the other thing, why you need it, the purpose of getting anything or wanting anything has to be absolute crystal clear. यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार है, बट आपको उसका रीजन पता होना चाहिए कि आपको वो चाहिए तो चाहिए क्या। आपकी नीड 1 करोड़ की भी हो सकती है, 1 लाख की भी हो सकती है, इवन 10,000 की भी हो सकती है, but the purpose is it for your children for paying school fees or is it for your just party and all, right? That's the difference. And that has to be absolute crystal clear. जब तक आपका why clear होगा, जब तक आपका purpose clear होगा, you can manifest the things very nicely, right? So हमको जो हमारे ड्रीम्स हैं, डिजायर है, हमेशा एक ये क्लियर होनी चाहिए, और उसके बाद ये क्लियर होना चाहिए कि वो हमें चाहिए क्यों, why behind that dream and desire. Until unless you are not getting the answer, अगर आपके पास आंसर ही क्लियर नहीं है, then you will not be able to manifest. आंसर भी अपने आप से तब तक पूछो जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता है कि आपको वो चीज चाहिए क्यों, why is that dream necessary for you, why do you want to manifest, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी it won't work. और अगर आ गई that means you really need it. और उसके बाद देन लीव हाउ, क्योंकि होता क्या है प्रियंका, इवन आई थिंक ये मेरे साथ भी हुआ था कि इट्स लाइक यू नो हम हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं, यार ये आएगा कैसे, मुझे नहीं पता, राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ यूर एक्सपीरियंस, चाहते बहुत होती है लेकिन रास्ता पता नहीं होता, दैट हाउ ऑलवेज मेक्स अस वरीड एंड स्ट्रेस्ड, राइट? तो यही चीज है, अपने ड्रीम्स डिजायर को क्लियर रखो, नो द व्हाई एंड देन बी very clear. After being very clear, just leave, forget how, just allow. Don't ask how, just allow. Isn't it, Priyanka? Yeah, and don't ask when, because universe आपको देंगे. We have to be patient. And another thing कि अगर आप clarity नहीं आ रही है, you can write step by step, so you will be clear. क्योंकि क्या होता है, कई बार हम सोच रहे होते हैं बट हम सोच में इतने सारे मिक्सअप हो जाती चीजें कि हम क्लैरिटी नहीं ला पाते. सो बेस्ट थिंग कि आप उसको लिखते जाइए. आप कहीं पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, वहां पे आप क्लियर होंगे एक्चुअली दिस इज द रीजन बिहाइंड इट. फिर उसको शॉर्ट लिस्टिंग करते जाएंगे आप, तब आपको पता चलेगा कि मेरा वाई ये है. then the universe will give you the things. Perfectly, perfectly. Meanwhile, I also wanted to welcome Dipali ji, Nidhi ji, Tanmay Upadhyay ji, and I cannot read the name. Anyways, thank you so much for joining us in our Insta live session. We would like to take your questions as well. In case आपको कुछ भी manifestation से related question पूछना हो, so please drop it into the comment box. We are happy to answer that. Okay, Priyanka, we all know that ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, राइट? लेकिन इसका लॉजिक क्या है? इफ यू कैन जस्ट एक्सप्लेन अस कि ग्रैटिट्यूड और एफर्मेशन, हाउ इट इज कनेक्टेड टू मैनिफेस्टेशन, राइट? कि हम तो वैसे भी ग्रैटिट्यूड जैसे मोस्टली होता है, ठीक है आई एम ग्रेटफुल रहता है, राइट? कि ठीक है, बट क्या एक्चुअल में क्या है? जस्ट लेट अस फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल अबाउट ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड में हम एक्चुअली ग्रेटफुल रहना होता है. हमारे पास लाइफ में पास्ट में जो भी चीजें थी, अब तक हमारी लाइफ में हम यहाँ जब आ चुके हैं इस स्टेज में, इसके पहले हमारी लाइफ में जो भी चीजें थी हमको उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा. जैसे कि आज मेरे पास
10,000 रुपए है तो मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलूंगी कि यार मेरे पास बहुत कम पैसे, बहुत कम पैसे, कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कम है। अगर मान लो कि कोई चीज है, हम उसको बोलते हैं कि ये तुम्हारी, हम किसी चीज की तारीफ करते हैं तो सामने वाला भी खुश होता है और बोलता है मैं उसको और ये चीज दूं, बट किसी ने मुझे गिफ्ट किया, मैं खुश हो गई, तो मैं, सामने वाला सोचेगा वाह ये खुश हो गई, चलो अच्छी बात है, तो हमेशा मैं गिफ्ट। पर अगर मान लो कि उसने मुझे गिफ्ट दिया और बोलती अरे ये कैसा गिफ्ट दिया इसने, इतना सस्ता दिया है, ये अच्छा डिजाइन नहीं है, तो सामने वाला भी अरे इसको वैल्यू नहीं है, मैं नहीं दूंगा, इस तरीके से सोचेंगे। द सेम थिंग हैपन्स विथ यूनिवर्स एज वेल। अगर हम सोचेंगे कि हमारे पास अब तक लाइफ में जो था भगवान ने जो दिया, हम खाने के लिए हमको राशन दिए हैं, रोटी चावल दिए हैं, हम इतना सा सुंदर से घर में रह रहे हैं, ये सारी चीजें, इतनी अच्छी गाड़ी है हमारे पास, तो हम उस चीजों की वैल्यू करेंगे साथ में उन रुपयों से, क्योंकि ये सारी चीजें आई है। आई एम गिविंग एग्जाम्पल फॉर द मनी, तो हमको यूनिवर्स और ज्यादा देंगे। द सेम थिंग विथ हेल्थ एज वेल। अगर हमारी हेल्थ में कभी ब्रेक डाउन है तो हम बाकी पार्ट्स तो बहुत सारी चल रही है, अगर हमारे हाथ में दर्द है बट वी कैन वॉक, हम खाना अच्छे से खा सकते हैं, हम डाइजेस्ट कर सकते हैं, वी शुड बी थैंकफुल फॉर दोज थिंग्स। इस तरीके से हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो हमको आगे भी ग्रेटिट्यूड में हमको हेल्पफुल होगी और हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। और ग्रेटिट्यूड में एक चीज और रहती है, जैसे आपने बोला एफर्मेशन, दैट इज योर सेकंड क्वेश्चन राइट। तो इसके लिए हमको ग्रेटिट्यूड करने के टाइम में एफर्मेशंस हम बोलते हैं, हम जो चीज बोलते हैं बार बार रिपीट करना है। एफर्मेशंस मीन्स हम कोई भी चीज चाहते हैं, तो जैसे कि मुझे कोई चीज चाहिए कि मुझे रिलेशनशिप बहुत अच्छी चाहिए, तो मुझे ग्रेटिट्यूड के साथ उसको बोलना होगा और दिल से बोलना होगा, इमोशनली कनेक्ट करके। खाली लिख रहे हैं अरे मुझे चाहिए, मुझे ये, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, मुझे अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होता है, उसे दिल से आपको बोलना होगा, अंदर से आपको फील करना होगा, साथ ही उनके लिए जो भी नेगेटिविटी है उसको खत्म करनी होगी। तो आपको जस्ट रिपीट करना है, आई वॉन्ट अ गुड रिलेशनशिप। अब तक मेरे साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा, आप जिसके लिए भी बोलना चाहते हैं, मैं एक हेल्दी अच्छी सी रिलेशनशिप डिजर्व करती हूँ और सामने वाला बंदा भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहना चाहता है, एंड वी वांट ऑल दिस थिंग्स। तो इस तरीके से हम डिजायर करते हैं अपने फुलफिल करने के लिए, एफर्मेशन करें डेली के डेली, तो हमारी वो फिश जरूर पूरी होगी। और एफर्मेशन से एक्चुअली हमारी ब्रेन रिवायरिंग होती है, देयर इज अ साइंस कि हमने जो बात की सबसे शुरू में कि हमारी जो, हम जो चाहते हैं सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो प्रिपेयर होता है, एक्चुअली एफर्मेशन करने से रिपीट होता है। किसी बच्चे को हम बार बार ABCD सिखाते हैं, लिखवाते हैं, तो प्रैक्टिस करने के बाद हमको हैबिट हो जाता है, आज हमको ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा हम कंटिन्यू लिखते जाते हैं। इसी तरीके से हमारा माइंड भी एफर्मेशन करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट कर लेता है, देन वी अट्रैक्ट दैट एनर्जी एंड दैट पर्सन। परफेक्टली परफेक्ट। तो यहाँ पे आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय मनी एफर्मेशन जो कि मैं ऑलवेज यूज करती हूँ, एंड आई होप यू नो दिस एफर्मेशन कैन वर्क फॉर एनीवन हु वांट्स टू मैनिफेस्ट मनी इन देयर लाइफ। आई द मोमेंट आई गेट अप और it's like because at that time our subconscious mind is activated kind of thing। जैसे ही हम उठते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है। एट दैट टाइम व्हेन यू से लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट, it means I'm attracting money to my life. You know, I'm a money magnet. My business is growing each and every day, it's growing. I'm earning money very easily. Money is coming to me easily and effortlessly, right? I have so much money in my life. This kind of affirmations when we repeat, जब हम ये repeat करते हैं अपने mind में, it sets our subconscious mind और वो चीज हमारे brain में जाके wiring होती है। It's like you know means it वो हमारे brain में जाके it gets into our subconscious mind as well और वो चीज full day हमारे mind में रहती है। And that's how the affirmation works और ये चीज it works a lot। मतलब अगर आपको मनी अट्रैक्ट करना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरे पास कम है या मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, दीज लिटिल चेंजेस इन योर स्टेटमेंट इन योर वर्ड्स कैन मेक अ हेल लॉट ऑफ चेंज इन योर लाइफ सीरियसली। इन द इवन द ग्रैटिट्यूड जोन ऑल्सो, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। दो बच्चे हैं, अगर एक बच्चे को आप खाने के लिए चीजें दे रहे हो, बहुत अच्छी चीजें दे रहे हो, बट वो उसको फेंक दे रहा है, एंड इवन द अदर वन जिसको आप एक सूखी रोटी भी दे रहे हो एंड ही इज एब्सोल्युटली अप्रिशिएटिंग दैट एंड हर चीज में वो अप्रिशिएट कर रहा है, उसको सूखा से सूखा चीज भी दे रहे हो, ही इज एंजॉइंग एंड ईटिंग, एंड द अदर वन उसको आप पिज्जा भी दे रहे हो, बर्गर भी दे रहे हो एंड ही इज जस्ट थ्रोइंग इट अवे। आप डिसाइड करिए कि आप किसको खाना देना चाहेंगे। यूनिवर्स इज सेम, इतना जो दिया है, आर यू एंजॉइंग इट और यू आर सेइंग यार लाइफ तो बर्बाद है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हैं।
आपकी थॉट कैसी है? अगर आप 10 रुपए के लिए भी ग्रेटफुल हैं, यू आर गोइंग टू गेट मोर। लेकिन अगर आप लाखों रुपए जो बैंक में हैं या आपके पास हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि भगवान ने कम दिया है या वी कैन नॉट अफोर्ड या एनी सच थिंग, देन इट्स रियली टाइम टू थिंक। क्योंकि इवन ये बहुत बार होता है, मॉल में भी जाते हैं ना, तो बहुत सारी चीजों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड वी थिंक यार ये अफोर्ड नहीं कर सकते, Yeah, राइट? ये महंगा है, एवरीवन, use that हाँ, word, this is too costly, actually this we are attracting negativity कि महंगा, I can't afford it. यस एब्सोल्युटली। मतलब ये हर किसी की अपनी अपनी लेवल है। अगर आप उस लेवल में रह के भी, मतलब यू नो, इफ यू आर हैप्पी, मोर देन हैप्पी कि हम इस एटलीस्ट ये अफोर्ड कर पा रहे हैं, देन दिस थिंकिंग विल हेल्प यू अट्रैक्ट सॉरी abundance in your life. This is the just थोड़ा सा change, minute change in your life can help you get abundance in your life, isn't it Priyanka? Yeah, and I want to add one more thing, हम जैसे सुबेरे सेट की सुबेरे सो उठ के सबसे पहले हम इस बारे में सोचते हैं जो what we want, तो हम रात को सोने के पहले भी हमको ये चीजें करनी चाहिए, क्योंकि हमारा रात भर सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जैसे ही हम सो जाते हैं तो हम जो चीज सोच के सोएंगे और हम अपनी डिजायर, अपनी ग्रेटिट्यूड को बोल के सोते हैं, एफर्मेशंस को भी बोल के सोते हैं, तो हम सुबह रात भर हमारी माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं तो रात में उन चीज़ों को आप नोट करें, लिखें, अपने माइंड पे बोले या जोर से बोले। अगर जोर से बोल के हमारी कानें सुनती है तो उस चीज़ को और जल्दी फुलफिल करते हैं हम। तो दीज आर द वे यू कैन जस्ट manifest the things you want. Meanwhile, I just wanted to welcome Prirish ji and Neha ji, Ankur ji, Mr. Ashish, Elena, Kusum, Komal. Yes, thank you so much for joining us. And I still just reiterate, in case if you want to have, if you want to ask anything related to manifestation, you can drop your question in the comment box. We will be absolutely happy to answer that. Just wanted to end with a question. क्या mistake करते हैं लोग मैनिफेस्टेशन के टाइम पे? एक्चुअली लोगों का ये रहता है कि मैंने मैनिफेस्ट किया है, मैंने ये मांग लिया यूनिवर्स से और यूनिवर्स मुझे तुरंत दे दे। दे डोंट हैव पेशेंस। हमको यूनिवर्स से मांगने का जो प्रोसेस है उसको पूरा करना होगा। और हम ऐसे दिल से नहीं मांगते यार बस हो जाए हो जाए हो जाए, ऐसे मतलब वो होते हैं ना जिद्दी बच्चे, बट उसके पीछे का लॉजिक नहीं समझते हैं। उस तरीके से बिहेव नहीं करना है। वी हैव टू नो द प्रोसेस और हम उसको दिल से मांगे, शिद्दत से मांगे और हम उस प्रोसेस पे बिलीव करें। डाउट नहीं रखना है हमको। हम उसको करने के बाद डाउट रखते यार पता नहीं होगा कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। वो इम्पेशंस अगर आ गया तो इट विल नॉट वर्क एट ऑल। तो हमको वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना होगा। और हम कोई चीज़ मांग रहे हैं, जैसे हमने एक और पॉइंट बोला था, लैक ऑफ क्लैरिटी नहीं होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी ही नहीं रहेगी यार हमको रुपए चाहिए, हमको रुपए चाहिए, भगवान मुझे पैसे दे दीजिए, आपने बोला ही नहीं कि आपको एक्चुअल में कितना अमाउंट चाहिए और किस लिए चाहिए, तो यूनिवर्स आपको कैसे देंगे। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू थिंक फॉर दीज थिंग्स, तो तभी आपके डिजायर्स फुलफिल होंगे। Okay, let me just put it in the point. Mostly people mistake first is you have to be absolutely patient. Trust the universe कि अगर आपने यूनिवर्स में भेजा है, कुछ मैनिफेस्ट किया है, it will come to you. Just trust the process. Second thing, keep your intentions clear. Have clarity in your thought. Third thing, be very clear in your why, right? And the last thing, keep your FTBAs, that is feeling, thought, belief, and action aligned. And watch how the universe will align the things for you. And that is all about manifestation from our end. Yes, before we end, I would like Priyanka to share about the community we have made and just let everyone know about the community which we have made. Actually, I used to do these manifestation things long time, and मंजूषा भी ये सारी चीजें कर रही थी, and we just connect कि हम ये बातें कर रहे थे, and we started कि यार इतनी पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है और हम दोनों की लाइफ में छोटी छोटी बहुत सारी ऐसे मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने लगी, क्योंकि हम डेली नीड पे, हम इस डेली रूटीन में हम इन चीज़ों को करने लगे। तो वी विश लाइक मेरा भी कहीं ना कहीं ये रहा है कि मैं लोगों से शेयर करूँ जो मैं लाइफ में चैलेंजेस के
आए हैं उसको मैं फुलफिल कर सकी हूँ। तो क्यों ना लोगों से ये चीजें शेयर की जाए। और ये होता है कि जब हम शेयर करते हैं, जैसे कि मैं और मंजूषा जब हम बात करते थे, तो हमारी वो एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हो जाती थी और हम कहीं ना कहीं करने के लिए और ज्यादा वो एक्साइटेड हो जाते थे कि हाँ चलो हमको करना है। तो वी हमने ये सोच के क्रिएट किया है कम्युनिटी कि उसमें और भी लोग जुड़ सके। और वहां पे क्या होता है कि हम ये सारी चीजें करने का एक प्रोसेस है, उस पर हम साथ मिलके करते हैं। और साथ मिलने का सबसे बड़ा ये उद्देश्य होता है कि हम अपनी बातें शेयर करें, अपनी फीलिंग शेयर करें, अपना डाउट शेयर करें, जिससे कि हर किसी को क्लैरिटी मिलती जाएगी कि उनको अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उससे वो कैसे उभर कर अपनी लाइफ में अपनी ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, अपनी डेली नीड्स में भी जो प्रॉब्लम है उसको फुलफिल कर सकते हैं। सो फॉर दैट रीजन वी हैव क्रिएट कम्युनिटी। एंड व्हाट मोर यू वांट टू ऐड, Yeah. मंशा? Meanwhile, I just wanted to welcome Raipur Fees, Shilpa Saxena ji, Nima ji, Prateek Patel ji. Thank you so much for joining us in our Insta Live. And I just wanted to say again, in case if you have any question regarding manifestation, we are here to help you. Okay, regarding the community, thank you Priyanka for sharing all those things. Yes, apart from that, just wanted to add on. We have made a community naming Dream Chasers Hub. In this community we take daily sessions at 11:30, in which other people have also joined, in which they are guided on how to manifest their dream life. And apart from that, we share, we empower, and that's a platform to connect. And it has a absolutely wonderful energy. Trust me कि I request at least एक बार session attend कीजिए. And it's not means apart from us, the people in the community are absolutely on their toes every Right. time, every day. 11:30 dot means it's like it's so lovely to see those people, the dedication really. Yeah. It really means a lot to us, and we are absolutely grateful that we got that chance to at least inspire people and do whatever we can from our end. So it's a community wherein I would like to invite कि please आइए देखिए what is happening. It's something you should know. Coming generation should also know about this. And the other thing कि we here I would like to say you can manifest anything in your life. This will make your life absolutely very easy. Don't restrict yourself. Be open to new thoughts. You are going to get a lot of new perspective. And this is from here I really want to say manifestation works. It's not just the word, it's a science behind it. So understand the logic, and we would really love to have you all in our community. So yes Priyanka, means I'm really this session ऐसा लग रहा है थोड़ा और खिंच जाता तो but Yeah, I really need to want stop here. या दिस इज अ टॉपिक। इट्स मतलब इसमें इतना मजा आता है बात करने में। वी Yes, गेट द एनर्जी, हम जितना बात करते हैं उतनी हमारी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है। तो yes, रियली इट्स अ seriously. सेशन, आई रियली लव इट। And I guess here also we can see that energy level, how means how excited we are to share all those things. It's really, I would like to invite each and everyone, be a part of that community. या You are going to get lots and lots of positive energy. So this is just, we are ending the session now. Thank you so much Priyanka, and thank you so much everyone, those who have joined. It really means a lot to us. And it's not like the session has ended, but anytime if you feel like you want some help, you need some guidance regarding manifestation, we both are always there for you to help. You can connect us via DM, or even in the comment box also you can share your questions also, once it will be on the reel zone. So आपके questions we will answer. Even आपको कभी भी कोई भी doubt हो manifestation से related, we will be happy to help you. You can DM us. So I think this is what I wanted to say, Priyanka. वी ऑल आर ऑलवेज देयर। Seriously. So and we would love to help you, because ये यस, चीज जो हमारे लाइफ में हमें इतना चेंज जो मिला है by God's grace and by universe grace. So seriously we would like to spread it to each and everyone to know its benefit. Law of attraction manifestation. So this is all from our end, the topic how manifestation actually works. We tried to cut it short within 40 minutes, but still there are lot more to share, and to give it to you all people. But cutting it short here, and
Thank you so much, everyone, for joining. So, Thank you so much, Manjusha, and thank you everyone for joining us. yeah. Okay. Thank you, Priyanka, for taking out your time and joining me in the session. It's absolutely my pleasure. Thank you, dear. My pleasure too. Yeah. Yeah. Bye bye, all. Have a nice, absolutely nice and fantastic Bye, weekend. Yeah. Bye bye. bye everyone. Yeah. Bye.